Hello friends, my name is Preet Shah. I can proudly say that I am a chartered accountant and a faculty member of Naukar Institute. Today I am going to tell you that why I consider chartered accountancy, that is the course of CA, an omnipotent course in the field of commerce. Well, a lot of students after the 12th standard who have chosen the stream of commerce are confused as to which course they should do after their schooling. I'll tell you my story why I chose chartered accountancy as the course that I wanted to do after my schooling. I was never fascinated by the amount of money that a chartered accountant can make or the amount of respect that a chartered accountant gets. I was always fascinated by the amount of knowledge that a chartered accountant has. Well, of course, the amount of money and amount of respect is something worth it, but an added and the most important advantage is the amount of knowledge that a chartered accountant has. Well, I believe, I've always been a firm believer that we should always run behind knowledge, not behind degree. You must have heard about that famous dialogue in Three Idiots कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो. Well, मैं उसे थोड़ा मॉडिफाई करता हूं. डिग्री के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो. डिग्री झक मार के तुम्हारे पास आएगी. So I always strive for knowledge, and after my 12th standard, I always thought that ऐसा कौन सा कोर्स है जिसमें मुझे बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, हर चीज के बारे में जानने को मिलेगा. एंड देन आई केम अक्रॉस चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड सिंस देन आई हैव बीन कंसिडरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी एन ओमनीपोटेंट कोर्स एंड ऑल पावरफुल कोर्स इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स का एक भी ऐसा एरिया नहीं है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर कवर नहीं होता है. कॉमर्स के जितने भी एरियाज, आप जितनी भी टर्मिनोलॉजीज बोलो, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसके बारे में प्रोबेबली नॉट एन एक्सपर्ट नॉलेज बट एक बेसिक नॉलेज जरूर होगा. और एक्सपर्ट नॉलेज, वंस यू आर डन विथ योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यू आर केपेबल इनफ टू गेन एन एक्सपर्ट नॉलेज इन एनी फील्ड यू चूज. एंड दैट इज वाई आई कंसिडर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज द बेस्ट कोर्स इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स. अगर आपके पास वो पैशन है, अगर आपके पास वो ज़ील है टू गेन नॉलेज. नाउ सी, chartered accountancy has 3 levels, that is CA Foundation, CA Intermediate and CA Final. In CA Foundation there are 4 subjects, 4 basic subjects. In CA Intermediate there are 8 subjects, and in CA Final there are 8 subjects again. Okay. In all these 20 subjects that are there in the 3 levels, I can combine these 20 subjects in these 3 levels into 8 different subject areas of chartered accountancy, and these are those areas, the subject areas of chartered accountancy, and you can say the subject areas of commerce field, because as I said, chartered accountancy covers the whole field of commerce. There is not even one thing that is left out. The first one that you usually study in a subject area of chartered accountancy, because you are called chartered accountants, and that is why accountancy is always considered as the first subject. Accountancy sometimes referred to as financial reporting. Okay, so accountancy definitely is one subject which is completely covered at an expert level. So I can say yes, at an expert level accountancy can be known by a chartered accountant. Second one is cost management. A chartered accountant not only does accounting and auditing, what you might have thought, he also does cost management. Cost management मतलब क्या कि किसी भी कंपनी के अंदर वो जितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है या जितने प्रोडक्ट्स परचेज करता है, उसकी कॉस्ट को रेगुलेट करना, जितने भी वो एक्सपेंसेस करता है उसमें से उन कॉस्ट को मैनेज करना, रिड्यूस करना, कोशिश करना इस तरीके से कि क्वालिटी वही रहे बट कॉस्ट रिड्यूस हो जाए किसी भी कंपनी के अंदर, बिकॉज अ रुपी सेव्ड इज अ रुपी अर्नड. सो दैट इज वाई कॉस्ट मैनेजमेंट ये दूसरा पोर्शन है. द थर्ड वन इन विच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एक्सपर्ट्स, और अगर आपने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर दी तो आई एम प्रीटी श्योर आपके बहुत सारे रिलेटिव्स आपके पास आएंगे एंड दे विल बी लाइक, बेटा मेरा ये इनकम टैक्स का रिटर्न है, प्लीज फाइल कर देना. बिकॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन. Now taxation can be divided into 2 areas. It can be a direct tax also, it can be indirect tax. Direct tax जैसा आपने नाम सुना होगा शायद income tax के बारे में. Okay, so direct tax is income tax and indirect tax यानी GST. So indirect tax is nothing else but GST. Okay, so GST as well as income tax, इसका एक्सपर्ट नॉलेज, हाई लेवल का नॉलेज रहता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास.
एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस डेफिनेटली उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहता है, नॉट ओनली थियोरेटिकल। इसके अलावा आता है समथिंग दैट यू माइट कंसिडर ऑड, बट यस, अनदर सब्जेक्ट एरिया ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक और सब्जेक्ट एरिया है। तो शायद सुनने में ऐसा लगता हो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कॉमर्स की फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर्स और उस सबका नॉलेज का क्या लेना देना, बट यस, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर। बिकॉज आजकल की जितनी कंपनीज हो चुकी है, जितने बैंक्स हो चुके हैं एटसेट्रा, ये सब ऑनलाइन चलते हैं। एंड यू नो कि ऑनलाइन चलते हैं तो इसके अंदर कितने सारे सिस्टम्स डेवलप करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करनी पड़ती है, एचआर के लिए सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करनी पड़ती है, प्रोडक्शन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है। एंड ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो कमर्शियल नॉलेज की जरूरत होती है, दैट इज विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड ऑल्सो हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जो टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, जिस तरह से वो सिस्टम ऑडिट कर सकता है एटसेट्रा। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक और एरिया है किसी मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के फील्ड के अंदर। इसके बाद आता है ऑडिटिंग, दैट इज द कोर सब्जेक्ट एरिया ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जाना चाहता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पावर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वन एंड ओनली राइट है इसके, जो है ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग इज द राइट फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास के अलावा कंपनीज का ऑडिट कोई नहीं कर सकता। एंड इफ यू गाइज डोंट नो व्हाट ऑडिट इज, ऑडिट मतलब चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। तो किसी भी कंपनी के, आप एक बात समझिए, किसी भी कंपनी कि जो शेयर होल्डर्स है वो जानना चाहते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देती है, मैनेजमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, पर वो शेयर होल्डर्स रिलाई कैसे करें उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे? तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, और ये ऑडिटर जो है वो चेक करता है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और एक ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, जिसमें वो अश्योर करता है कि यस, दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, यानी करेक्ट तरीके से बनाए गए हैं या नहीं। सो दैट इज वाई ऑडिटिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर, एंड इट इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ एनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि शेयर होल्डर्स को जो इंफॉर्मेशन देनी है एंड शेयर होल्डर्स जो इंफॉर्मेशन रिलाई कर सकते हैं, दैट कैन बी एन इंफॉर्मेशन विच इज सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड दैट इज वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कंडक्ट करता है। एंड एज आई सेड, इट इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि वही एक ऑडिट कर सकता है, एंड दैट इज वाई द ह्यूज डिमांड। ऑलराइट, इसके अलावा क्या क्या टॉपिक्स है? हमारा एक सब्जेक्ट एरिया रहता है यहाँ पे, हमारा 6th सब्जेक्ट एरिया विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंटेंसी हमने देखा, कॉस्ट मैनेजमेंट हमने देखा, टैक्सेशन हमने देखा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखा हमने, ऑडिटिंग देखा, अब इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इज एन एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। तो ये स्टॉक मार्केट की नॉलेज और ये सारी चीजें कहां से आती है? ये फाइनेंस की नॉलेज लोग क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं? ये जानने के लिए कि अरे सर, हम इन्वेस्टमेंट कहां करें? That is because a chartered accountant has an expert knowledge about financial management also. उसे फाइनेंसेस कहां प्लेस करने हैं, क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, कहां से उसको सबसे ज्यादा अपने कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है एटसेट्रा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो भी तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के अंदर आएगा। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट लॉ। सी, चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग कंपनीज में जाके अलग अलग चीजें चेक करता है। जैसे ऑडिट है ना, जहां पे मैंने ऑडिट की बात करी है, ऑडिट में वो पूरी तरह से कंपनी को चेक करते हैं, तो उसे डेफिनेटली अकाउंटिंग की नॉलेज तो होनी चाहिए, बट एक कंपनी के ऊपर लगने वाले जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस है उसके भी नॉलेज होनी चाहिए। सो ज्यादातर जो भी कंपनीज के ऊपर बहुत सारे लॉज लगते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के अंदर पूछा जाता है। नॉट ओनली कॉर्पोरेट लॉज बट इवन अलाइड लॉज और एक्स्ट्रा ऐसे लॉज होते हैं, सिक्योरिटीज के लिए लॉ होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, ऐसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लॉ होते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के अंदर आता है। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो हैज अ डीप इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल दीज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। एंड फिर फाइनली आता है ऐसे मिसलेनियस कई तरह के कोर्स, क्योंकि मैंने कहा कि मैं फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट्स और फाइनल के 8 सब्जेक्ट्स, इन सबको कंबाइन करके ये 8 एरियाज में डाल रहा हूं। तो हमारा एक आखिरी एरिया बचता है विच इज अदर टॉपिक्स, जिसके अंदर बहुत सारे एरियाज अलग अलग, जैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आता है। इंटरमीडिएट लेवल पे यू हैव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो एमबीए में सिखाया जाता है।
MBA में जो सिखाया जाता है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के अंदर आता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इकोनॉमिक लॉज है, रिस्क मैनेजमेंट है। सो ऑल दीज टॉपिक्स, ऑल दीज अदर टॉपिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ वर्किंग नॉलेज फॉर ऑल दीज टॉपिक्स ऑल्सो। सो आई कैन से कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं बचता जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पता। कॉमर्स की फील्ड के अंदर सारे एरियाज, सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज है, एंड दैट इज व्हाई आई कंसिडर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एन ओमनीपोटेंट कोर्स इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.